Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aravind College. In last lecture, we started with our fourth chapter, that is the Karl Marx, that is life and work of Marx. Right? अपन ने इंट्रोडक्शन देखा. इंट्रोडक्शन में क्या देखा अपन ने कि बाबा कार्ल मैक्स वॉज द मेजर theorist of the socialist tradition. Right? He brought together in a powerful theoretical synthesis the key element of the existing socialist certitudes. Even where socialists do not base themselves on the matrix of Marx, their views are either a reaction to or influenced by it. Right? Once it gained adherent among leaders of the European Socialist Party, as it did towards the end of the 1880s. Other socialists currently would neither ignore nor avoid its influences. उनका contribution must be summed up as the materialist conception of history, but its pursuance and power can be better appreciated by the term scientific socialism. It seemed to explain the ills of capitalism and the necessity for socialism at one and the same time. It ensured the sentimental and visionary and elevated rigor and realism. Marx rejected socialist stress on moral persuasion of the owner and saw the class of the future, indeed the more really productive class, as the working class or proletarian. Life and work of Marx. Karl Marx is best known not as a philosopher but as a revolutionary whose work inspired the foundation of many communist regimes in the 20th century. Right? And he was a thinker of many who had influence in the creation of modern world. He was a philosopher and वो इकोनॉमिस्ट भी था और बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में भी काम कर रहा था वो. देन वी सॉ द लाइफ ऑफ द कार्ल मैक्स. कार्ल मैक्स क्या है? कार्ल मैक्स इज अ जर्मन फिलोसोफर, रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट एंड लीडर. कार्ल मैक्स फाउंडेड साइंटिफिक सोशलिज्म. His basic ideas known as Marxism formed the foundation of socialist and communist movement throughout the world in early life. Karl Heinrich Marx, he was born in the German and his birthday is on 5th May 1818. He was the son of Heinrich Marx, the lawyer, and Henriette Persegue Marx, a Dutch woman. She was a Dutch woman. राइट. फिर वो लॉ प्रैक्टिस करने लगे, ज्यूइश वगैरह. फिर कार्ल मैक्स का क्या हुआ, फिर एट द एज ऑफ 6 वो चर्च वगैरह जाते थे. सब वो उनके रिलीजियस के हिसाब से करते थे. बट एक पॉइंट ऐसा आया ही बिकेम एन एथिस्ट, लाइक डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. राइट. सो उसने क्या किया, ही रिजेक्टेड क्रिश्चियनिटी एज वेल एज ज्यूइश रिलीजन. It was he who coined the saying, religious is the optimism of the people, a basic principle in modern communism. Karl attended the Frederick Wilhelm Gymnasium in Trier for 5 years, graduating in 1835 at the age of 17. The gymnasium program was the usual classical one: history, mathematics, literature, and language, particularly Greek and Latin. See, he was very skillful in French and Latin, both of which he learned to read and write fluently. In later years, he taught himself other language. Right? तो उसको स्पेनिश, डच, इटालियन, रशियन, इंग्लिश, संदावेनिज्म, ये सारे लैंग्वेज आते थे उसको. लाइक लैंग्वेज का बहुत से लैंग्वेज का वो मास्टर बन गया था. बट दूसरे लैंग्वेज आते बोल के उसने अपना जर्मन लैंग्वेज नहीं छोड़ा, वो जर्मन में भी उतना ही फ्लुएंट था. Then young adult age. In October 1835, Marx enrolled in Bonn University in Bonn, German. Right? जहाँ पे उनको लॉ करने के लिए उनके पापा ने भेजा था, क्योंकि उनके पापा चाहते थे he should be a lawyer. But Marx was more interested in philosophy and literature. Right? फिर उनको पोएट, ड्रामेटिज्म, इनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. बट क्या हो गया वहाँ पे क्या हो गया, वो पढ़ाई नहीं करते थे. He used to spend lot of time in partying and drinking. और फिर उन्होंने लोगों से बहुत सा पैसा भी उधार ले लिया था. जब उनके पापा को ये सब पता चला तो उनके पापा ने उनको बॉन यूनिवर्सिटी से निकाल के
ही शिफ्टेड इनटू द बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो सारे एक ब्रिलियंट थिंकर का था, एंड वॉज चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़। और वो इंस्टीट्यूशंस पे सारे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे, इंक्लूडिंग अबाउट द रिलीजन, फिलोसॉफी, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एंड मार्क्स जॉइन दिस ग्रुप ऑफ रेडिकल थिंकर होल हार्टेडली। और फिर उन्होंने 4 साल बर्लिन यूनिवर्सिटी में रहे, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट की, एंड ही गॉट द डॉक्टरल डिग्री इन मार्च 1841. Then forced to move on. Marx then turned to writing and journalism to support him. See, मार्क्स क्या हुए, फिर वो जर्नलिज्म एंड राइटिंग सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इन 1842 he became editor of the liberal Kolozini newspaper Rheinzini Zeitung, but Berlin government prohibited it from being published the following year. See, वो एक अच्छे राइटर भी थे और जर्नलिज्म भी थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इन 1842 व्हाट इट इज, ही स्टार्टेड राइटिंग न्यूज़पेपर, राइट, दैट इज़ द रेंशिन जैटुंग। बट बर्लिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके न्यूज़पेपर पे बैन प्रोहिबिशन डाल दिया, लाइक। और फिर उस साल क्या हुआ, उनका कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ। इन जनवरी 1845 Max was expelled from France at the instigation order of the Persian government, as he said. See, in January 1845 क्या होगा, मार्क्स को क्या हो गया, फ्रांस से निकाल दिया गया था, एज एन ऑर्डर था ऑफ द पर्शियन गवर्नमेंट, एज ही सेड। He moved to Brussels, Belgium, where he found the German Worker Party and was active in the Communist League. See, and then he moved to Brussels. फिर वो बेल्जियम की ओर वगैरह चले गए, बेल्जियम वगैरह चले गए। क्यों, उनको फ्रांस से निकाल दिया गया, इसलिए ही वेंट टू बेल्जियम, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छे उन्होंने काम वगैरह किए। अब बेल्जियम में क्या किया उन्होंने, लेट्स सी, where we were, just a minute friends. हाँ, Belgium, where he founded the German Worker Party and I was active in the Communist League. See, अब बेल्जियम में क्या किया, he founded the German Worker Party, उन्होंने जर्मन वर्कर पार्टी फाउंड की और वो वहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे थे। Here he wrote the famous manifesto of the Communist Party, known as the Communist Manifesto. Sir, here he wrote the famous manifesto of the Communist Party. Expelled, forced out by the Belgian government, Marx moved back to Cologne, where he became editor of the New Preußische Zeitung in June 1848. See, expelled by the Belgian government. See, forced out. बेल्जियम गवर्नमेंट ने भी उनको फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। मार्क्स अब कहाँ गए, ही मूव टू कोलोग्नी, वेर ही बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूएन ज़ैंटिंग, रैनिंजी ज़ैंटिंग in June 1848. Less than a year later, the Persian government supported the paper and Max himself was expelled, forced to leave. See, less than a year क्या हो गया, पर्सियन गवर्नमेंट ने ये न्यूज़पेपर स्टॉप कर दिया और कार्ल मैक्स क्या हो गया, यहाँ से भी निकल गया। देखो, बेल्जियम से निकल गया वो वापस, बेल्जियम के बाद वो कोलोग्नी में गया, वहाँ से भी उसको फोर्सफुली निकल गया। ही वेंट टू पेरिस, बट इन सितंबर द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सपेल्ड हिम अगेन। अब वो पेरिस गए, बट सितंबर में क्या हुआ, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी वहाँ से उनको निकाल दिया। मार्क्स फाइनली सेटल्ड इन लंदन, England, where he lived as a stateless exile, like Britain denied his citizenship and Persian refused to take him back as a citizen for the rest of his life. See, फिर मार्क्स क्या हो गए, लंदन में जाके सेटल हो गए, बट वहाँ पे वो कैसे रहते थे, स्टेटलेस एक्सेल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप नहीं दी और पर्सियन लोगों ने क्या बोला, पर्सियन गवर्नमेंट ने क्या बोला,
हम आपको वापस एज ए सिटीजनशिप बोल के नहीं लेंगे। और वो पूरी ज़िंदगी स्टेटलेस बोल के ही रहे। ना ब्रिटिश उनको ब्रिटिश इंग्लैंड के सिटीजनशिप दे रही थी, ना पर्सिया उनको अपने कंट्री में लेके उनको सिटीजनशिप वापस दे रहे थे। इन लंदन मार्क्स सोल मीन्स ऑफ सपोर्ट वॉज जर्नलिज्म। सी, अब लंदन में तो आप तो गया वो कार्ल मैक्स, बट वो अपना गुजारा कैसे करेगा? सो इट वॉज थ्रू द सपोर्ट वॉज जर्नलिज्म। कैसे किया उन्होंने अपना गुजारा? विद द हेल्प ऑफ जर्नलिज्म। ही रोट फॉर बोथ। सी, उसने जर्मन एंड इंग्लैंड लैंग्वेज पब्लिकेशन किया। He wrote for both German and English language publication. From August 1852 to March 1862, he was correspondent by the New York Daily Turbine. Contribution a total about 355 articles. See, from August 1852 to March 1862, उसने न्यूयॉर्क डेली टर्बाइन उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया? अबाउट 355 आर्टिकल्स उसके कंट्रीब्यूशन थे टोटल। जर्नलिज्म however paid very poorly. Mark was literally saved from starvation by the financial support of friend and fellow writers Frederick Engels. See, अभी जर्नलिज्म में उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा था कार्ल मैक्स को। जर्नलिज्म में उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो क्या है, वो भूख के मारे मरना, ऑलमोस्ट मरने को ही आया था। तब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया? उसके कुछ फ्रेंड्स ने और उसके कुछ फेलो राइटर्स ने। वन वॉज द फ्रेडरिक एंजल, दैट वॉज इन 1820-1895। इन लंदन इन 1864, मैक्स हेल्प्ड टू फाउंड द इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन known as First International, for which he wrote the inaugural opening address. In London in 1864 क्या हुआ? मैक्स हेल्प टू फाउंड द, मैक्स ने क्या किया? उसने एक इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन खोला, लाइक नोन एज द फर्स्ट इंटरनेशनल, और वहाँ पे उसने इनॉग्रल ओपनिंग एड्रेस के बारे में लिखा। Thereafter, Max's political activities were limitedly mainly to exchanging letters with radicals in Europe and America, offering advice and helping to shape the socialist and labor movement. Thereafter, Marx's political activities were limited. उसके बाद मार्क्स की पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी थी? इट वॉज लिमिटेड मेनली टू द एक्सचेंजिंग लेटर्स विथ रेडिकल इन यूरोप एंड अमेरिका, ऑफरिंग एडवाइस and helping to shape the socialist and labor movement. Moving towards the next page. The personal life. Max was married to his childhood sweetheart Jenny Westerpalen, who was known as the most beautiful girl in Tehran on June 19, 1843. मार्क्स का शादी किसके साथ हुआ? उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, लाइक बचपन से ही उसको कोई पसंद थी, उसका नाम था जेनी, हु इज़ नोन एज द और वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी इन टेराई। टेराई में मतलब शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन टेराई। और उनका शादी कब हुआ? दे गॉट मैरिड ऑन जून 19, 1843। शी वॉज टोटली डिवोटेड टू हिम। सी, और वो पूरे कार्ल मैक्स को पूरी अच्छे से सपोर्ट करते थे। शी डाइड ऑफ कैंसर ऑन December 2, 1881 एट द एज ऑफ 67। सी, अब ये जेनी थी, जेनी को क्या हुआ? जेनी सफ़र्ड फ्रॉम कैंसर, और उस वक्त कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा दवाई कुछ नहीं थी, ना ही इतनी फटाक से कैंसर डिटेक्ट होता था। तो क्या है, अगर किसी को कैंसर हुआ तो डेथ वॉज श्योर हो गया। अभी तो भी कैंसर अभी कौन सा स्टेज पे उस पर डिपेंड रहता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे क्या है रहा तो ऑपरेशन करके कैंसर ठीक हो जाता है एंड ऑल, बट उस वक्त कोई भी स्टेज पे रहो कैंसर, इट वॉज श्योर कि ही और शी विल डाई। सो ड्यू टू कैंसर जेनी वॉज डेड ऑन December 2, 1881 at the age of 67. For Max it was a blow from which he never recovered. See, but जेनी की मौत से क्या हो गया? मैक्स वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया और वो वापस उसमें से कभी बाहर ही नहीं आया। The Marks had 7 children,
4 of whom died in infancy or childhood. See, मार्क्स के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। 4 बच्चे तो छोटे थे तभी मर गए, राइट। एंड ही डीपली लव्ड हिज डॉटर हु इन टर्न अडोर्ड हिम। सी, और वो अपनी बच्चियाँ लड़कियाँ थी उसको, और उन लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो लड़कियाँ भी उसको उतना ही प्यार करती थी। ऑफ द 3 सर्वाइविंग डॉटर, जेरी, लॉरा एंड एनोरा, 2 मैरिड फ्रेंचमैन। सी, अभी तीनों लड़कियां ही उसकी सर्वाइव कर रही थी, 3 लड़कियां ही थी, तो तीनों लड़कियों के नाम क्या थे? जेनी, लॉरा एंड एथेनोर। उसमें से 2 लड़कियों ने फ्रेंच आदमी के साथ शादी की। बोथ ऑफ मार्क्स सन इन लॉ बिकेम प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशलिस्ट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सी, और 2 बच्चों की शादी के बारे में उसने बात की है, तो वो दोनों बच्चों के हस्बैंड्स जो थे, मतलब मार्क्स के सन इन लॉ, they became the prominent French socialist and member of parliament. Eleanor was active as a British labor organizer. See, अब जो थर्ड डॉटर थी एलेनोर, शी वॉज एन एक्टिव ब्रिटिश लेबर ऑर्गेनाइजर। मतलब वो एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, और उसने एक ब्रिटिश लेबर ऑर्गेनाइजर का अच्छा काम कर रही थी। Marx spent most of his working time in the British Museum doing research both for his newspaper articles and his books. See, मार्क्स क्या करता था? बहुत सा टाइम कहाँ बिताता था? यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ब्रिटिश म्यूजियम। क्यों? वहाँ पे जाके वो रिसर्च करता था उसके न्यूज़पेपर के लिए भी एंड फॉर हिज बुक्स ऑल्सो। मतलब म्यूजियम में बैठ के वो रिसर्च करता था सब कुछ। इन प्रिपरेशन फॉर दास कपिताल he read every available book in economics and financial theory and practices. See, in preparation for Das Kapital, he read every available work in economics and financial theory and practice. Marx' exclusive smoking, wine drinking, and love of heavily spiced food may have been contributing causes to his illness. See, मार्क्स को क्या थी? बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत थी, वाइन वगैरह ड्रिंक करने की आदत थी, और उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लगता था। इसकी वजह से क्या हो गया? वो बीमार रहने लग गया, राइट। अभी अपन देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर अपन स्मोकिंग ड्रिंकिंग करें तो अपन खुद भी बीमार पड़ते हैं, बहुत से लोग बहुत ऐसे ही बीमार पड़ते हैं। तो इट वॉज द वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर हिज इलनेस। इन द फाइनल डजन ईयर ऑफ हिज लाइफ ही कुड नो लॉन्गर डू एनी कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल वर्क। सी, एंड इन लाइफ में बाद में क्या होने लग गया? वो कुछ भी काम नहीं कर पाता था। ही कुड नॉट डू एनी कंटिन्यू इंटेलेक्चुअल वर्क। ही डाइड इन द आर्म चेयर इन लंडन ऑन मार्च 14, 1883। सी, उसकी वाइफ 81 में एक्सपायर हुई और 83 में मार्क्स भी गया। ही डाइड इन हिज आर्म चेयर। अभी आर्म चेयर यानी उस वक्त लोगों के पास वो लकड़ी की चेयर रहती थी जिस पर वो बैठ के ऐसे थोड़ा सा झूला जैसे रहता था। आई डोंट नो आपको याद आएगा नहीं आएगा, बट उस आर्म चेयर में उसकी मौत हो गई 2 months बिफोर हिज 65th बर्थडे। सी, 2 महीने के बाद उसका 65th बर्थडे आने वाला था, बट उसके पहले ही लेफ्ट। ही लाइज buried in London's Highgate Cemetery, where his grave is marked by a bust sculpture of persons' heads and shoulders of him. See, he lies buried in London's Highgate Cemetery, where is marked by a bust यानी sculptures of person, head and shoulder of him. इस तरह से उसकी मौत हो गई। Now moving towards the next point, that is the work of कार्ल मैक्स। अभी कार्ल मैक्स ने क्या क्या काम किए? द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्रूटल टोटलिटेरियन मार्क्सिस्ट रीजन अराउंड द वर्ल्ड हैज़ लेफ्ट मेनी पीपल with the impression that Marx was an authoritarian thinker. See, the long history of brutal totalitarian Marxist regime around the world has left many people. बहुत से लोगों को इस इम्प्रेशन के साथ छोड़ दिया कि बाबा Marx was an authoritarian thinker. But readers who dive into his work for the first time are often surprised to discover an enlightenment humanism and a philosopher of anticipation
one who engaged well-ruled human being living rich, varied and fulfilling lives in a post-capitalist society. See, बट रीडर जो उसका काम वगैरह देखा है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि बाबा इसने कितने अच्छे से फिलोसफिकल बातें ह्यूमैनिज्म पे कितने अच्छे से लिखा है, राइट। ऑल राउंड ह्यूमन बीइंग लिविंग रिच, मतलब और हर किसी के बारे में, हर तरह की सोसाइटी के बारे में इसने बहुत अच्छे से लिखा है। मार्क्स राइटिंग doesn't just propose a revolutionary political project, they offer a moral satire of the alienation of the individuals living in capitalist society. See, Marx writing doesn't just propose a revolutionary political project, they offer a moral satire of the alienation of individual living in capitalist societies. Moving towards the next point, an introduction to a contribution to a satire of Hegel's philosophy of right. अभी हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। Originally published in 1844 in a radical Persian newspaper, this fascinating short essay captured many of Marx's early criticism of modern society and his radical vision of emancipation. See, originally published in 1844. See, कब publish हुआ था? It was published in 1844 in a radical Persian news. This fascinating short essay captured many of Marx's early criticism of modern society and his radical vision of emancipation. He also introduced several of the key themes that would shape his लेटर राइटिंग से। उन्होंने बहुत से की थीम्स मिलाए जिससे क्या है, ही कुड शेप हिज अर्ली राइटिंग्स। कार्ल क्लेम दैट द बोर्गेस रिवॉल्यूशंस ऑफ द 18th century may have benefited a wealthy and educated class. See, Marx claimed that the bourgeois revolutionaries of the 18th century may be benefited a wealthy and a educated class, but did not challenge private form of domination in the factory, home and field. बट उसने इनको चैलेंज नहीं किया अबाउट द प्राइवेट फॉर्म। अब जो प्राइवेट फैक्ट्री थे, जो प्राइवेट चीज़ें, उनको उसने चैलेंज नहीं किया। मार्क्स theories the revolutionary subject of the working class and proposed its history task to abolish private property and achieve self-emancipation. Sorry. Marx theories with revolutionary subject. अभी मार्क्स की theories with the revolution, जो वर्किंग क्लास पे उसने theories वगैरह लिखी है, उसके अंदर क्या है, it has some historical task, और एक उसने में बोला है to abolish the private property. अभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का फंडा वगैरह था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो मार्क्स वो क्या बोल रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए और जो भी रहना चाहिए सबका मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, सब कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे और सब एवरीथिंग वुड गो ऑन इन अ स्मूदर वे एंड इन अ बेटर वे। Economy and Philosophy manuscript of 1844, not published within his lifetime and only released in 1832 by officials in the Soviet Union. These notes written by Marx are an important source for his theory of capitalist alienation. See, not published within his lifetime, पूरे लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुए, एंड ओनली रिलीज्ड इन 1932 by official in the Soviet Union. These notes written by Marx are an important source for the theory of capitalist alienation. कैपिटलिस्ट को अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर्म करना है, ऐसा कुछ भी करना है, इफ़ यू वांट द थिंग्स शुड गो ऑन इन प्रॉपर वे, तो क्या है, उसके जो थियरीज है, उसके जो सोर्स थे, उसके जो नोट्स थे, वो बहुत अच्छे थे उन सब के लिए। They reveal the essential outline of what Marxist is and provide the philosophical basis for humanist reading of Marx. See, they reveal the essential outline of what Marxism is and they provided the
philosophical base for humanist reading of Marx. In this manuscript, Marx analyzed the harmful effect of the organization of labor in modern industry societies. See, in modern industry, see, in this स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट में क्या किया, मार्क्स ने क्या एनालाइज किया कि बाबा हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इन मॉडर्न इंडस्ट्री सोसाइटी रखोगे करोगे तो. Modern workers, he argues, have become estranged from the goods they produce from their own labor activity and from their fellow workers. See, मॉडर्न वर्कर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे और खुद ही सारा लेबर एक्टिविटी सब देखेंगे और डोमिनेट करेंगे बाकी. Rather than achieving a sense of satisfaction and self-actualization in their labor, workers are left exhausted and spiritually depleted. See, अभी उन वर्कर्स को क्या होगा, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन होगा, मतलब कोई उनका काम को रिस्पेक्ट ही नहीं देगा. देयर वुड बी ओनली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर. फॉर मार्क्सिस्ट, the antidotes of modern alienation is a humanist conception of communism based on free and cooperative production. See, for Marx क्या है, the antidotes to modern alienation is a humanist conception of communism based on free and cooperative production. Next point is the Communist Manifesto. Okay, I think we should wind up our lecture here. In next lecture, we'll continue the point. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.